Good morning, student. Today I am going to start the remaining part of chapter triangle and its properties. Hordes. I will discuss the question of hordes. Question number 1. See the figure. In the given figure, AE is equal to AC. AE is equal to AC. Angle BAC is equal to 40 degree. Angle BAC is equal to 40 degree. Angle ACF is equal to 75 degree. ACF 75 degree. And BCF is a line. BCF is a line. Then prove that BE is equal to CE. In this figure, you can see AE is equal to AC. Angle BAC is equal to 40 degree. Angle ACF 75 degree. And this line is a straight line. So we have to prove BE is equal to CE. यानी हमें ये बताना है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन. गिवन में वही लिखा जाता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन A is equal to AC, comma, angle BAC is equal to 40 degree, comma, angle ACF is equal to 75 degree. It is given in the questions. So we will write which is given in the question. We will write in the given topics. To prove BE is equal to CE. प्रूव्ड, जिसे प्रूव्ड करना है उसे हम लिखते हैं टू प्रूव. एंड प्रूफ यानी अब हम लोग इसे प्रूव्ड करेंगे. सो वी विल राइट प्रूफ. इन ट्रायंगल AEC यू कैन सी इन ट्रायंगल AEC, इन द ट्रायंगल AEC AE इज इक्वल टू EC विच इज गिवन. और हम लोग जानते हैं कि अगर दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. सो एंगल ACE इज इक्वल टू AEC. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. सो वी विल राइट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल. ओके, आगे चलेंगे हम लोग. सो वी विल राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ट्रायंगल में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं. एंड वी विल राइट, एंड यू नो दैट in a triangle there are three angles. So sum of three angles in a triangle is equal to 180 degree. So angle EAC plus AEC plus ACE, this angle plus this angle plus this angle is equal to 180 degree. एंगल EAC का नाम मैंने BAC लिखा है. एंगल A ही है बट BAC विच इज गिवन इन योर बुक, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो. ओके, प्लस AEC प्लस ACE और AEC दोनों आपस में इक्वल है. सो वी विल राइट ACE के जगह पर AEC हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री. AEC plus AEC to AEC, angle BAC is given 40 degree plus and so on. 40 degree को उस तरफ कर देंगे is equal to के, and we will write 180 minus 40. After subtraction we get 140. So 2 angle AEC is equal to 140 degree and angle AEC is equal to 140 degree divided by 2 and we get 70 degree. You can see angle AEC is equal to 70 degree
और जैसा कि हम लोग देखे हुए कि एंगल AEC और ACE दोनों आपस में इक्वल है, सो एंगल ACE भी 70 डिग्री होगा। ओके, परंतु हमें प्रूव्ड करना है BE इज इक्वल टू C। सो कंटिन्यू। इस एंगल को देखेंगे, इस एंगल को, ये एक्सटीरियर एंगल है। एज वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस ट्रायंगल और इस एंगल को जोड़ देंगे तो वो इस एंगल के इक्वल होगा। दैट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो वी विल राइट BAC एंगल प्लस ABC is equal to ACF. See here. So I have written angle ACF is equal to BAC plus ABC. Okay. Angle ACF which is given 75 degree is equal to BAC which is given 40 degree plus ABC ही रह जाएगा और that is known as exterior angles property. 40 डिग्री को उधर लाएंगे, 75 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू का साइन है। हम लोग जानते हैं कि रिप्लेस करेंगे इधर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो वी विल चेंज द साइन। इज इक्वल टू एंगल ABC 75 माइनस 40 यू नो 35 डिग्री एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 35 और ABC की जगह पर आप EBC लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि एंगल B ही रहेगा लेकिन नाम थोड़ा बदल गया। ओके, 35 डिग्री। ओके, तो आप देख सकते हैं कि एंगल EBC 35 डिग्री, यहाँ देखें फिगर को, एंगल EBC 35 डिग्री पहुंच चुके हैं। ओके, अब हमें ये एंगल को लाना है और ये एंगल, ठीक है। ओके, एज given in the question BCF is a straight line, so we will follow straight angle. As you know that angle ACF plus angle ACF plus angle ACE plus angle BCE is equal to 180 degree. You can see in the figure of the question. ACF is 75 degree plus AC is 70 degree plus BCE is equal to 180 degree. 75 plus 70 145 plus BCE is equal to 180 degree. Angle BCE is equal to 180 minus 140, we get 35. BCE is equal to 35. BCE is equal to 35. You can see BCE 35. हम लोग ये भी 35 और ये भी 35। ओके, ये भी 35 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं और ये भी 35 डिग्री फाइंड आउट कर चुके थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल का इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसका अपोजिट साइड्स ये है तो उसका नाम होगा CE और इस एंगल का अपोजिट साइड्स BE है तो BE इज इक्वल टू C। So see here, I have written since EBC is equal to ECB, क्योंकि दोनों एंगल 35 डिग्री हमने फाइंड आउट किया था और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो अपोजिट एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। सो BE is equal to C and we will write proved। यही हमें प्रूव्ड करना था जो हम लोगों ने प्रूव्ड कर लिया। Okay, next question number 2. See the figure. In the given figure, BO and CO are the bisectors of the exterior angles meeting each other at O. BO and CO both are
bisectors and it is bisect exterior angle. This is exterior angle of triangle ABC. ये एंगल, ये पूरा इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो इस एक्सटीरियर एंगल को और इस एक्सटीरियर एंगल को साइड BO एंड CO क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। दैट इज नोन एज बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC मीटिंग ईच अदर एट O। दोनों एक दूसरे से O पर मिल रहे हैं। इफ एंगल A is 70 degree, angle A is 70 degree, which is given, then find angle BOC, and we have to find BOC. इस एंगल को फाइंड आउट करना है। See figure properly and we will solve one and understand it carefully. In triangle ABC, by angle sum property, you know that angle A plus B plus C is equal to 180 degree. Angle A is 70 degree plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. 70 degree को हम इस तरफ ले आएंगे and angle B plus C is equal to 110 degree. Okay. Now एंगल EBC, ये एंगल को जरा गौर से देखिए। एंगल EBC प्लस एंगल B, ये एंगल B जब भी बोलेंगे तो इधर होगा ये एंगल, और EBC बोलेंगे तो ये एंगल। दिस प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री एंड यू नो दैट इट इज linear pair. Okay, and half angle EBC plus half angle B plus half angle 180 degree. अब आप पूछेंगे कि ये मैंने हाफ क्यों किया? हाफ इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स। ये दोनों लाइन बाइसेक्टर है इस एंगल को, सो वी मस्ट बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, हाफ एंगल EBC, यानी इस एंगल को हम हाफ करेंगे और हाफ 1/2 लिखेंगे। तो हाफ करेंगे, मैथ का प्रॉपर्टी है कि अगर एक को हाफ करेंगे तो सबको हाफ करना पड़ेगा, है ना। LHS को भी और RHS को भी, यही प्रॉपर्टी है। तो हाफ एंगल EBC प्लस हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल 180, सबको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में अगर लिख देगा बाइसेक्टर तो हम लोग अलर्ट हो जाएंगे और एंगल को हाफ करेंगे। ओके, और एंगल EBC का हाफ कौन हो जाएगा, जरा देखें। EBC का हाफ कौन हो जाएगा? ये एंगल भी होगा और ये भी होगा। तो हमें इस एंगल को प्रूव करना है, तो सो वी विल राइट एंगल OBC। इस एंगल को हम लोग लिखेंगे, तो हमने लिखा है हाफ एंगल EBC, जो हाफ होकर के एंगल OBC के रूप में जाना जाएगा, प्लस एंगल B हाफ हो ही नहीं सकता है क्योंकि बाइसेक्टर का यूज एंगल B के लिए नहीं हुआ है, इसलिए जो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पर 1/2 इंटू 180 किया था, तो ये 180 डिवाइड हो गया 2 से और ये 90 आया, सो वी विल राइट 90। आफ्टर दैट एंगल हाफ एंगल B को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो सो वी विल राइट एंगल OBC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल B। ओके, सो प्रोसीड अगेन see this angle, see here, एंगल DCB, ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा, एंड यू नो दैट लीनियर पेयर मेक्स 180 डिग्री। तो एंगल DCB प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी है एंगल DCB प्लस एंगल C इज इक्वल टू
180 degree. You can write linear pair. एंगल DCB को हाफ करेंगे तो एंगल C को भी हाफ करेंगे और 80 डिग्री को भी हाफ करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि बाइसेक्टर शब्द का यूज किया हुआ था. ओके. एंड हाफ एंगल DCB के जगह पर हम लिखेंगे एंगल OCB. ओके. प्लस हाफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल OCB इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल C. ओके. अब हम इस ट्रायंगल में आ जाएंगे. यू कैन सी हमने इस एंगल को फाइंड आउट कर लिया, इस एंगल को फाइंड आउट कर लिया. अब हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है. सो वी विल राइट इन ट्रायंगल BOC दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी. यू कैन सी इन ट्रायंगल BOC एंगल OBC प्लस OCB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल OBC के जगह पर हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल B. चूंकि हम लोग फाइंड आउट किए थे एंगल OBC तो इसके जगह पर ये हमने लिखा. प्लस OCB भी हमने फाइंड आउट किया था 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल C तो इसके जगह पर हमने 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल C लिखा. प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल B माइनस हाफ एंगल C प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. 1/2 एंड 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो माइनस हाफ कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे एंगल B माइनस माइनस प्लस एंगल C प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री माइनस हाफ इंटू B प्लस C 110 डिग्री. अब आप सोच रहे होंगे 110 कहाँ से ले आए. सी हियर एंगल B प्लस C, एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 100 डिग्री हम लोगों ने पहले ही ले आया था तो इसके जगह पर हम लोग 110 डिग्री लिखेंगे. सी सो वी विल राइट एंगल B प्लस C 110 plus angle BOC is equal to 180 degree. Okay, you can write from equation 1. Okay, 2 से 110 को डिवाइड करेंगे 55. 180 माइनस 55 प्लस BOC is equal to 180 डिग्री. 180 माइनस 55 we get 125 डिग्री प्लस BOC is equal to 180 डिग्री. 125 को इस तरफ ले आएंगे. 180 माइनस 125 बी गेट एंगल BOC इज इक्वल टू 55. ओके. जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया. इनरिचमेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC. AB इज इक्वल टू AC. BC is equal to CD. BC is equal to CD. Find X, Y, Z. Okay. Start. In triangle ABC, you can see ABC. In which AB and AC are equal. So this is known as isosceles triangle. As we know that if two sides of a triangle are equal, then its opposite angle are also equal. So we can write AB is equal to AC, angle ABC is equal to ACB. AB is equal to AC, then we will write angle ABC plus is equal to ACB. Okay, and angle A is 40 degree given. See here. In triangle ABC, AB is equal to AC, angle ABC is equal to ACB.
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हम जानते हैं कि दो साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और उस ट्रायंगल में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यू कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज गिवन 40 डिग्री प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, तो ए सी बी के जगह पर ए बी सी लिखेंगे, क्यों? बोथ आर इक्वल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी प्लस ए बी सी, टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 डिग्री को इस तरफ ले आएंगे, 180 माइनस 40 वी गेट 140। सो टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 140 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, वी गेट 70 डिग्री। And ABC is equal to 70 degree, but angle ABC and angle ACB both are equal due to isosceles triangle. Both are 70 degree. So we can write angle X and angle Y is equal to 70 degree. Okay. Again, see the figure. See the figure. In the figure, again BC is equal to CD. BC is equal to CD. So we will again follow isosceles triangle. तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये होंगे और इस साइड के अपोजिट एंगल ये होंगे, both are equal due to isosceles. Okay, so we will write angle CBD, this angle, plus CDB plus this angle plus BCD, this angle, this plus this plus this, 180 degree. Okay, see here. Now in triangle BCD, BC is equal to CD. So we will write angle CBD is equal to CDB. How? Angle opposite to equal sides of a triangle are equal. By angle sum property, angle CBD plus CDB plus BCD is equal to 180 degree. CBD plus CDB के जगह पर CBD लिखेंगे कि both are equal, plus BCD is given 90 degree is equal to 180 degree. दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल CBD प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को इस तरफ ले आएंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, वी गेट 90। सो एंगल CBD इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, वी गेट 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल CBD इज इक्वल टू 45 डिग्री। And CBD and CDB both are equal, therefore both are also equal to 45 degree. Therefore you can write CDB जो कि Z दिया हुआ था, so CDB is equal to Z is equal to 45 degree. Hence you can write angle X is equal to 70 degree, Y is equal to 70 degree and Z is equal to 45 degree. Okay. Thank you.